Hello dear students, today Maths 2, chapter number 2, Sequences and Series, exercise 2.1. See question number 8, find 5 numbers in GP such that their product is 1024 and fifth term is square of the third term. So there are two conditions. First condition is the product of all the 5 numbers which are in GP is 1024 and fifth term is square of the third term. So for the solution, let 5 numbers in GP be a upon r square, a upon r, a, AR and AR स्क्वायर. तो ये 5 नंबर्स होते हैं जीपी के लिए. कभी भी अगर 5 नंबर्स कंसिडर करना हो, कभी भी एज्यूम करना हो फॉर एनी क्वेश्चन, सो यू शुड कंसिडर 5 नंबर्स इन जीपी बी a upon r square, a upon r, a, AR and AR स्क्वायर. ये 5 नंबर्स हैं. अब इसके बाद इनके अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन वी शुड अप्लाई हियर कंडीशंस. तो एज पर एज गिवन a upon r square into a upon r into a into AR square, ये सभी product of all the 5 numbers becomes 1024. So we see that here r square going by r square and r going by r. So what is remaining here? Remaining terms 5 times a in multiplication, that is a into a into a into a into a. These are remaining terms. So this way they will be a to the power 5. It is equal to 1024. So a raised to 5 equal to 1024. Therefore a raised to 5 equal to 4 raised to 5. क्योंकि इसको देखो 4 into 4 into 4 into 4 into 4 5 times multiplying we get 1024. So comparing on both sides we get a equal to 4. देखो powers are equal, so you can compare the bases. A equal to 4. This is indices rule. So this implies that a equals 4. So according to the first condition we get a equal to 4, but in the second statement it is given that fifth term is square of the third term. This means t5 equal to square of t3. Fifth term is the square of t3. तो यहाँ हमारे पास जो टर्म्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है देखो ये है फिफ्थ टर्म. तो वी शुड राइट हियर ए आर स्क्वायर. और यहाँ थर्ड टर्म क्या है ए, तो वी राइट हियर स्क्वायर ऑफ ए बिकॉज फिफ्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ थर्ड. तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए. देयरफॉर ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सो वन टाइम ए गेट कैंसल्ड. This implies that r square equal to a. So what is the value of a? We see that value of a is r square equal to a. Therefore r square equals 4. So we get r equal to plus minus 2. हमें r की वैल्यू क्या मिल गई? प्लस माइनस 2. After getting value of r plus minus 2, we should substitute the value of r plus minus 2 in these 5 numbers. So value of r and value of a. So 5 numbers in GP are a, that is here first number a upon r square. So value of a is 4 and 4 upon square of 2, that is 4 upon 4 becomes 1. And here 4 upon 2, that is 2. Here a equal to 4 becomes 4. And here 4 into 2 becomes 8, and here 4 into 2 square, that is 4 into 4 becomes 16. So another value of r is minus 2. So if we substitute r equal to minus 2, so first one will be same, that is plus 1, and second one 4 upon minus 2 becomes minus 2. A equal to 4, so we write here 4, and a into r, that is 4 into minus 2 becomes minus 8, and ar square, so here again 4 into 4 becomes 16. So dear student, attention here, the textual answer is incorrect. यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये अदर नंबर्स यहाँ पर दिए, यहाँ पर जो टेक्सटुअल आंसर है वो दिया है 16, 8, 4 to 1, which is 100% wrong. और ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16 और 1, -2, 4, -8 एंड 16. ये रहे हमारे 5 नंबर्स विच आर इन जीपी, ईदर 1, 2, 4, 8, 16 और 1, -2, 4, -8 एंड 16. तो यहाँ पर ये कॉमन रेशियो यहाँ से -2 आता है और यहाँ से आता है +2, जो कि यहाँ पर क्लियर है. ये r इक्वल टू +-2. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया. फ्यू क्वेश्चंस
मिस्टेक्स हैं, जो वहां पर मिस्टेक्स हो यहाँ पर कट करके बता दिया जाएगा, और जो यहाँ पर मान लो कहीं नहीं बोला गया है तो अभी करेक्टेड आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो यहाँ से अपना चेक करके देख सकते हो। इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर द अंडरस्टैंडिंग और फॉर द आंसर्स, यू कैन कंफर्म बाय योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए यहाँ पर हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज एक्स। अब देखो, फिफ्थ टर्म इज एक्स, एट्थ टर्म ऑफ जीपी इज वाई, एंड 11th टर्म ऑफ जीपी इज जेड। मीन्स फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ जीपी are x, y and z respectively. Verify whether y square equal to xz. Means you have to prove that y square equal to xz by using the given terms, fifth term x, eighth term y and 11th term z. Now see the solution for question number 9. Since t5 equal to x, it is given. But Tn formula, what is Tn formula? You know very well, Tn equal to a into r raised to n minus 1 is Tn. तो यहाँ पर therefore a r, अब देखो t5 क्या हो जाएगा, a r raised to 5 minus 1, this is t5, a into r raised to 5 minus 1 equal to x. This implies that a r raised to 4 equal to x, and let it be equation number first. सिमिलरली T8, अभी एट्थ टर्म है, यहां से देख सकते हो, देखो एट्थ टर्म ऑफ जीपी इज y, तो एट्थ टर्म इज y, देयरफॉर T8 इक्वल टू y. दिस इंप्लाइज दैट a r raised to 8 minus 1 equal to y, therefore a r raised to 7 equal to y, and let it be second equation. T11 यहां पर दिया, देखो 11th टर्म ऑफ जीपी इज z, तो T11 equal to z. This implies that a r raised to 11 minus 1, that is a r raised to 10 equal to z, and let it be equation number 3. तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हमें सिर्फ यहाँ से मिल सकता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2. तो सबसे पहले ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 वी गेट ए आर होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वाई. तो देखो ए स्क्वायर एंड आर रेज टू 7 होल स्क्वायर बिकम्स आर रेज टू 14, तो ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू 14 इक्वल्स स्क्वायर ऑफ वाई. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ऑलरेडी है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अब क्या करना है, हमें एक्स जेड को भी एक साथ लाना है, तो एक्स जेड तभी एक साथ आएगा व्हेन वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड. तो यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो ए आर रेज टू 4 इंटू ए आर रेज टू 10 इक्वल टू एक्स इंटू जेड. देयरफॉर ए स्क्वायर, और यहाँ आर रेज टू 4 आर रेज टू 10 बिकम्स आर रेज टू 14 इक्वल टू एक्स जेड. तो देखो ए स्क्वायर आर रेज टू 14 इक्वल टू एक्स जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, और यहाँ पर हमको फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से भी मिला है सेम, ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू 14 इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, देखो 4 एंड 5 में इनका LHS सेम है, देखो ए स्क्वायर आर रेज टू 14 और यहाँ पर भी है ए स्क्वायर आर रेज टू 14, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड. देखो यहाँ से क्लियरली कंपेयर कर सकते हो, इफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टू इक्वेशंस आर इक्वल, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, हेंस प्रूव्ड. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्या करना था, इसमें Tn फार्मूला अप्लाई करके 3 इक्वेशंस पहले फॉर्म करने थे, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें यहाँ दी गई है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, तो उसको चेक करना चाहिए. चेक करने के बाद कि हमें वाई स्क्वायर कहाँ से मिलेगा और एक्स इंटू जेड कहाँ से आएगा, तो वाई स्क्वायर हमें मिल गया स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड, और फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके एक्स इंटू जेड भी मिल गया, और कंपेयर कर दिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया, हेंस प्रूव्ड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. अब देखो 10th क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ पी क्यू आर एस आर इन जीपी सो दैट पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर प्लस एस आर ऑल्सो इन जीपी. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पर एक मेथड अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से कोई भी एक मेथड से सॉल्व करोगे वो ऑल आर करेक्ट, लेकिन अपना जो सॉल्व करने का वे है वो प्रॉपर होना चाहिए, मेथड से होना चाहिए. तो यहाँ पर एक मेथड मैंने प्रोवाइड किया जो कि हमें इजी लगा, वो मैंने दे दिया है. इफ यू वांट अनदर मेथड, सो आई विल प्रोवाइड अनदर सॉल्यूशन आल्सो.
अगर कोई भी कमेंट करके पूछेगा तो हम इसको अनदर सोल्यूशन में भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो सी द सोल्यूशन या प्रूफ। सिंस पी क्यू आर एस आर इन जीपी ये गिवन है, therefore q अपॉन p इक्वल टू r अपॉन q इक्वल टू s अपॉन r, क्योंकि होता है कॉमन रेशियो एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक मेथड यहां पर है, देखो सभी तीनों इक्वल हैं, नाउ कंसीडर इट इज इक्वेशन नंबर 1। वी वांट टू प्रूव दैट p प्लस q, q प्लस r, r प्लस s आर इन gp। तो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स q प्लस r अपॉन p प्लस q इक्वल टू r प्लस s अपॉन q प्लस r। तो अगर हम लोग वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी गेट q प्लस r होल स्क्वायर इक्वल टू p प्लस q इंटू r प्लस s, मीन्स स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। तो ये होता है जीपी के लिए फॉर 3 नंबर्स, और इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन भी। तो ऐसा भी निकाल सकते हो उस मेथड से। तो q प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस। तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है, इसका मीनिंग होगा कि p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस एस आर ऑल्सो इन जीपी। तो आइए इसको प्रूफ करने के लिए ट्राई करते हैं। टेकिंग LHS इक्वल्स क्यू प्लस आर होल स्क्वायर एक्सपेंडेड विच इज क्यू स्क्वायर प्लस 2qr प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से देखो कि अगर हम लोग यहाँ p अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन क्यू, ये इसको q इंटू क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर प्लस 2qr एज इट इज, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। अब इसको देखो सेकंड एंड थर्ड टर्म से, आर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस लिख दिया, और इसको लिख दो रीजन यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर? तो फ्रॉम फर्स्ट ये हमें मिल गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ये 2 है। अब इसके बाद क्या करोगे कि पी आर प्लस 2qr प्लस क्यू एस स्टॉप कर देते हैं यहीं पर। अब इसका आर एच एस भी कंसिडर करते हैं, टेकिंग आर एच एस ऑफ द सेम इक्वेशन। तो आर एच एस इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस, ओपन द ब्रैकेट। तो वी गेट पी आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो पी आर एज इट इज पी एस, तो वैल्यू ऑफ पी एस फ्रॉम द सेम इक्वेशन हमें क्या मिलता है उसको देखिए। वैल्यू ऑफ पी एस देखो, p इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहां पर पी एस था उधर क्या लिख दिया क्यू आर, और जहां पर क्यू एस है एज इट इज है। तो क्या चेंजेस किया गया? ओनली वन चेंज हियर, पी एस इक्वल टू क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ भी लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। तो पी आर एज इट इज, बट क्यू आर इक्वल टू 2qr प्लस क्यू एस, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। So from second and third equation, we get LHS equal to RHS. Hence P plus Q, Q plus R plus S are in GP. ये प्रूफ हो गया। दूसरा हम लोग दूसरे मेथड से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। If you are interested for the another method, I'll provide, but you should ask in the comment section. Now see question number 11। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The number of bacteria in a culture doubles every hour। बहुत केयरफुली यहाँ पर क्वेश्चन को देखो। The number of bacteria in a culture doubles every hour। If there were 50 bacteria originally in the culture, how many bacteria will be there at the end of 5th hour? ये है अपना क्वेश्चन। तो पहले मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं कि इसमें है क्या चीज। तो ध्यान दो, जैसे हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर 50 ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? पहले से ही 50 प्रेजेंट है, लेकिन जब 1 घंटे जब हमने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वहां पर, तो 50 मान लो हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया पहले से ला करके रख दिया, या नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली किसी भी वे में वहां पर पड़े हुए हैं। जब हमारा वहां पर एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, ऑब्जर्वेशन चालू हुआ, तो फर्स्ट आवर में ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो गए डबल। फर्स्ट आवर में, ये ध्यान देना। तो हमें यहाँ पर 50 से सिर्फ इतना ही रिलेशन रखना है कि हमने जब अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो 1 आवर में हमें कितने मिले? 50 इंटू 2 दैट इज 100। और इसी तरह से फिर सेकंड आवर में कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 2, क्योंकि उसका डबल होगा 200। फिर उसके नेक्स्ट आवर में 400, फिर फोर्थ आवर में 4 इंटू 2
दैट इज 800, और फिफ्थ आवर एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, तो एंड ऑफ फिफ्थ आवर मतलब 5 आवर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो फिफ्थ, ओनली फिफ्थ आवर में कितने ग्रो हुए, कितने इंक्रीज हुए, तो वहां पर 800 इंटू टू दैट इज 1600। ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकल कैलकुलेशन, ओरली, ऐसे नहीं, ओरली ऑब्जर्व कर लिया कि 5 घंटे अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आफ्टर 5 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी एट द एंड ऑफ 5 आवर्स, ऐसा बोल सकते हो, या आफ्टर 5 आवर्स विल बी 1600। तो ये जो फिफ्थ आवर में बढ़े वो 1600 है, ऐसा नहीं कि टोटल वन ऑफ फर्स्ट आवर में जो बढ़ा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये छोड़ करके ओनली फिफ्थ आवर में, जैसे फोर्थ कंप्लीट हुआ, जैसे ही फिफ्थ आवर 4 आवर्स 1 सेकंड जैसे स्टार्ट होता है और 5 आवर्स कंप्लीट होता है तो एंड हो गया, तो वो 4 to 5 में, मतलब फिफ्थ जैसे ही कंप्लीट होता है उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया जितने ग्रो हुए वो हैं 1600। फिर से एक बार समझ लो, 50 ऑलरेडी प्रेजेंट, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने जो अपना ऑब्जर्वेशन चालू किया फर्स्ट आवर में, जैसे हमने अपना वॉच टाइम स्टार्ट किया तो फर्स्ट आवर में वहां पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, हो गए 100, मतलब पहला आवर 100, सेकंड आवर 200, थर्ड आवर 400, फिर फोर्थ आवर 800, और फिफ्थ आवर में कितना हो गया 1600। तो ओरली यू कैन कैलकुलेट इट, बट बाय जीपी मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, आइए हम इसको दिखाते हैं। और इसी चीज को यहाँ पर मेन समझना भी है कि हियर नंबर ऑफ बैक्टीरिया मीन्स फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फर्स्ट आवर या आफ्टर फर्स्ट आवर, तो 1 घंटे में कितने हुए, 50 ऑलरेडी प्रेजेंट थे तो हमारा 50 ए नहीं होता यहाँ पर, इट इज नॉट फर्स्ट टर्म, ये 50 ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब हमारा एक्सपेरिमेंट चालू हुआ तो फर्स्ट आवर वहां पर टाइमर तभी स्टार्ट हुआ, तो उस समय 50 इंटू टू डबल हुए कभी फर्स्ट आवर में, तो टी वन इक्वल टू 50 इंटू टू दैट इज 100, and you can say first term of GP A equal to 50 into 2. Every hour bacteria doubles, that is R equal to 2. We need to find T5. T5 that is fifth term या after 5 hours या end of 5 hours. So using the formula Tn equal to A into R raised to n minus 1. This is very simple formula. Therefore T5 equal to E that is 50 into 2, देखो मैंने as it is ही रखा है 50 into 2 and here 2 raised to 5 minus 1, तो 2 raised to 5 minus 1 becomes what, here 2 raised to 5 minus 1 that is 2 raised to 4 which is equal to 16, तो 50 into 2 into 16, अब यहाँ पर देखो 50 into 16 becomes what 800, तो 800 इंटू टू, जो कि टेक्स्ट बुक में जो आंसर गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ 800 है, तो इसके लिए मैंने देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इट इज 800 इज नॉट द फाइनल आंसर, 800 तो सिर्फ एट द एंड ऑफ 4 आवर्स में ही हो जाते हैं। क्लियर हो गया ना, क्योंकि देखो 50 लोग पहले से मौजूद हैं और हमारा एक्सपेरिमेंट पहले से कब नहीं चालू है, हमारा फर्स्ट आवर से चालू होता है, तो फर्स्ट आवर में कितने हुए, डबल हो गए, तो 100 हुआ ना अपना फर्स्ट टर्म, T1 इक्वल टू 100, समझने की बात है। तो आइए फिर यहां पर, तो अपना जो देखो 50 इंटू 16 जो टेक्सटुअल आंसर है ओनली 800 दिया है, बट इट इज रिमेनिंग है 2, तो रिमेनिंग रह गया ना, तो 800 इंटू 2, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5 आवर्स इक्वल टू 800 इंटू 2 दैट इज 1600, दिस 1600 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ये स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है, समझना है, और अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकते हो। इन केस यू आर न्यू स्टूडेंट ऑन माय चैनल, यू शुड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड शेयर द चैनल लिंक टू योर फ्रेंड्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी आती है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉलेज एग्जाम एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर सीईटी एंड जेईई, these questions can be asked for NDA, banking, CA foundations and other questions also, तो किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। Now see the question very carefully. A ball is dropped from a height of 80 feet. कितना?
80 feet. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. How high does the ball rebound on sixth bounce? How high does the ball rebound on nth bounce? तो हमारे पास दो क्वेश्चन है कि सिक्स्थ बाउंस में कितना होगा और nth बाउंस में कितना होगा। तो यहां पर क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है कि हमारे पास जो कंडीशन है कि मान लो कि हम 80 फीट हाइट पर चले गए, कोई भी बॉल को लेकर के एक बॉल वहां पर है जो कि हम 80 फीट हाइट पर खड़े हैं, तो 80 फीट इज नॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। फिर से यहां पर वही कंडीशन होगी कि 80 फीट इज नॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। यू आर ऑन द 80 फीट हाइट जहां से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हो, राइट। तो ये कंडीशन 80 फीट के ऊपर है। तो फर्स्ट बॉल, जैसे बॉल को हम वहां से ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करने के बाद जब बॉल यहाँ पर फ्लोर से टकराती है और ग्राउंड से टकराती है, कहीं से भी टकराती है, तो जो रीबाउंड होती है, तो रीबाउंड होने के बाद वो बॉल कितना जंप करती है, दैट वन इज फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। जैसे फर्स्ट रीबाउंड, यहाँ पर फर्स्ट रिबाउंड मतलब फर्स्ट टाइम जैसे कोलाइड हो जाती है, कोइंसाइड होती है, सॉरी कोलाइड होती है, तो यहाँ अर्थ से या कोई प्लेन सरफेस से या ग्राउंड से जहां से भी टकराने के बाद जैसे ही जंप करती है, तो वो कितना जंप करेगी, 80 इंटू 3/4। तो ये चीज को आइए हम यहाँ पर सोल्यूशन में कंफर्म करते हैं। सिंस द बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम 80 फीट हाइट, therefore, in the first bounce, ball covered height equal to 80 into 3/4। तो एक्चुअल में अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 60 फीट, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ये कभी भी कंसिडर कर लो, अगर हम 80 फीट हाइट से बॉल को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वो 80 इंटू 3/4 हाइट को कवर करती है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इट रीबाउंड 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन। तो कहां से गिराएगी, 80 फीट से। कितना हाइट कवर की फर्स्ट में, दैट इज T1, तो यही T1 होगा। दिस इज T1 इन द फर्स्ट बाउंस, बॉल कवर्ड हाइट 80 इंटू 3/4 फीट। This means T1 equal to 80 into 3/4, or you can say first term A equal to T1 80 into 3/4, और सिंप्लीफाइंग वी गेट 60 फीट। तो चलो सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, एज इट इज छोड़ दो, दिस इज T1, देन यू कैन से A इक्वल टू 80 इंटू 3/4। अब ये क्लियर हो गया। तो ये क्लियर होने के बाद अब हम लोग आते हैं कि ऑलवेज ये 3/4, अगला जो नेक्स्ट राउंड आएगा, इसका नेक्स्ट राउंड आएगा, फिर से उसमें 3/4 3/4 3/4 ऑफ ओरिजिनल। तो नेक्स्ट में 80 इंटू 3/4 होल स्क्वायर, अगले में 80 इंटू 3/4 होल क्यूब, ऐसे कवर करता है। तो ऐसे कवर करते करते बॉल जो है टोटल सिक्स्थ बाउंस में कितनी हाइट कवर करेगी वो बताना है। तो आइए इसका सोल्यूशन हम लोग जीपी फार्मूले से निकालते हैं कि ए फर्स्ट टर्म 80 इंटू 3/4, ठीक है। दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द सिंप्लीफाइंग यू कैन सिंप्लीफाई आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर इक्वल टू 3/4, क्योंकि T2/T1 अगर करते जाओगे तो 3/4 ही मिलने वाला है, और n इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पर सिक्स्थ बाउंस के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, Tn इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, तो T6 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 3/4, फर्स्ट टर्म T1 80 इंटू 3/4 इंटू आर रेज टू 6 माइनस 1। तो आर रेज टू 6 माइनस 1 तो यहाँ पर हो गया 5, बट वन मोर 3/4 हियर, तो 80 इंटू अगेन देखो 3/4 होल रेज टू 5, और यहाँ से एक 3/4 और है, तो अगेन इट्स पावर इज 6, तो 80 इंटू 3/4 होल रेज टू 6 feet. Therefore, ball rebounds in sixth bounce. In sixth bounce, 80 into 3/4 whole raised to 6। अब इसको अगर टोटली सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर। हाँ, इन केस अगर कोई एग्जाम में ऑप्शन से मल्टीपल चॉइस में चूज करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके जरूर देखो, इन केस अगर ऑप्शन डेसिमल पॉइंट में गिवन है तो जा सकते हो। तो ये हो गया, द बॉल बाउंस इन द सिक्स्थ रिबाउंड 80 इंटू 3/4 होल रेज टू 6 फीट।
ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर। अब इसने पूछा कि हाउ हाई डज द बॉल रीबाउंड ऑन nth बाउंस। तो nth बाउंस के लिए भी आइए सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। हाइट कवर्ड बाय द बॉल इन nth बाउंस इज tn। तो सिंस tn इक्वल टू a इंटू आर एज टू एन माइनस वन, चलो यहाँ फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था, इसके लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला वापस रिपीट करता हूं कि tn इक्वल टू a इंटू आर एज टू एन माइनस वन। देयरफॉर tn इक्वल्स 80 इंटू 3/4। दिस इज फर्स्ट टर्म, देखो मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज किया कि दिस इज वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ आर 3/4 होल रेज टू n माइनस वन, 3/4 whole raised to n minus 1, and it is equal to 80 multiplied by 3/4 whole raised to n feet। अब देखो यहाँ 3/4 अगर हम लोग एक्चुअल में देखें तो यह 0.75। व्हाट इज दिस? 0.75। तो 80 अब 0.75 होल रेज टू n, अगर n इज नॉट गिवन तो हम लोग तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन अगर यहां से हम लोग पहले nth टर्म का फाइंड करते हैं आंसर, तो n इक्वल टू 6 पुट करके इसका भी आंसर दे सकते हो। देखो पुट n इक्वल टू 6 तो वी गेट 80 इंटू 3/4 होल रेज टू 6 फीट। ये डायरेक्टली यू कैन से हियर। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सॉल्व करना चाहता है तो यू कैन फाइंड इजिली फर्स्ट द बॉल रीबाउंड इन द nth बाउंस। तो यहाँ पर tn पहले फाइंड कर सकते हो, इट इज डिपेंड ऑन यू। पहले tn फाइंड करो, tn फाइंड करने के बाद पुट n इक्वल टू 6 वी गेट दिस आंसर। या अगर मान लो 10th बाउंस में पूछा है, 12th बाउंस में पूछा है तो भी निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे जितने नंबर ऑफ बाउंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉल का जंप होना कम हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो अपना बढ़ता जाएगा, और उससे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बॉल बाउंस करना बंद कर देगी, स्टॉप हो जाएगी टोटली ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो डियर स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक ही क्लोज करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन 13, 14 एंड 15, 3 मोर क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। तो यू विल गेट 3 मोर क्वेश्चंस सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए हमारे ये सभी 12 क्वेश्चंस स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना है, और एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस प्रैक्टिस करते हुए सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन की मीनिंग में कोई कंफ्यूजन है, या सोल्यूशन कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता है, या और ज़्यादा डिटेल्स में सोल्यूशन चाहिए, तो ये सब के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो जेईई, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैं वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जा करके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस you have any doubt for other exams or other questions, you can ask in the comment section. I'll provide your solution in the coming videos. तो इस तरह से हमारे सभी वीडियोस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने रिमेनिंग क्वेश्चन और रिमेनिंग चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।